हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 14 विच इज कंपनी अकाउंट वन। ओके, सो आई होप आप लोग सारे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आपका देख रहे होंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 14 एंड 15 from module B are very important for examination prospectus, okay, and quite lengthy one also। ठीक है, so काफी ज्यादा कोर्स कंटेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। So let's have a look about the course content subtopics which are generally part of this one। ठीक है, then we will talk about the like I'll try to summarize this one within 30 or 40 minutes, right? So if we talk about the company account one, so it is company account one. So where we have introduction of companies, definition and type of companies, distinction between partnership and liability company. Then we have classes of share capital, issue of shares, general instructions, non-voting shares. So these are the major subtopics which are generally part of this particular unit, right? So now, like, we'll start with company. So company क्या होता है? I hope everybody aware about this one. So it is defined under section 20 of Companies Act 2013, and it is a group of association. Okay, so it is a association of persons. Basically, it is an association of persons who contribute money and money worth to achieve some goal and objective. That means, जैसे suppose that there are few person called a sorry, so let's say there are few person जिसमें आपका है, ठीक है, ए मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी प्लस मिस्टर सी प्लस डी। ठीक है, सो दीज आर इंडिविजुअल पर्सन्स। ठीक है, सो दे स्टार्टेड अ कॉर्पोरेशन दैट इज कॉल्ड एबीसी लिमिटेड। ठीक है, सो सपोज दैट दे स्टार्टेड दिस एबीसी लिमिटेड। Okay, so they started this ABC Limited where suppose that A contributed 2 crores and B contributed 5 crores, C contributed suppose that 3 crores and D contributed an idea. So that means अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सबका पैसा ही लगा हुआ आपका। ठीक है, so it is generally known as an association of person, group of persons who contribute money and money worth, right? money और money worth। ठीक है, जैसे आपका डी का contribution है। ठीक है, so it is a registered association which is registered under Companies Act. It is an artificial person created by law. I hope you remember that particular one, to achieve some common goals and objective. Like let's say if it is a banking company, so they are dealing in like they are accepting deposit for the purpose of lending and working as an intermediary। ठीक है, या आपका कोई टूर एंड ट्रेवल कंपनी या कोई एजुकेशन कंपनी एंड सो ऑन। ठीक है, so a company is an association of person who contribute money or money worth to a common stock and use it for a common purpose. It is created by law and affected by law, and law is Companies Act 2013 as of now, right? Earlier it was Companies Act 1956. It is a legal person. Again, this legal status is given by this particular act just as much as an individual, but with no physical existence. So that's why it is known as it is an artificial person which is created by law. So Companies Act 2013 ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है दैट इज जनरली गिवन बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट एज ऑफ नाउ इन इंडिया। ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंग आपका डेफिनेशन होता है अदर्स। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर आल्सो, सो सेक्शन 20 of the Companies Act 2013 define a company as a company incorporated under this particular act or any previous company law like 1956 or any amendments in others। अब ये जो कंपनीज होती हैं, अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज फीचर्स ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी होती है तो उसके बहुत सारे फीचर्स आपके होते हैं। ठीक है, so I'll try to summarize these particular one। ठीक है, so and even just after this particular summary I'll give you definition for each and every terminology, so you can go through that particular one। I'll share in the form of PDF also, right? जिसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन पोर्शन। ठीक है, सो कंपनी आपका इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, दैट मींस इट इज अ रजिस्टर्ड फर्म अंडर कंपनीज एक्ट
2013, ठीक है. सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इट्स अ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपका क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है आपका अंडर कंपनीज एक्ट. इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. लॉ इज कंपनीज एक्ट 2013. आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स लाइक इट एक्ट लाइक अ पर्सन. जैसे हम लोग आपका किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, हम लोग आपका कोई सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर केस कर सकता है. इन सेम वे आपका कंपनी भी आपका सेम चीजें कर सकते हैं, बट इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल अपीयरेंसेस, राइट. परपेचुअल सक्सेशन बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर. सो परपेचुअल सक्सेशन मींस death of proprietor or owners does not affect the existence of that particular company. ठीक है. सो गोइंग कंसर्न आपका यहाँ पे अप्लाई होता है. जैसे ए बी सी डी जिन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज दैट चारों की डेथ होगी आफ्टर सम इयर्स, तो उनके जो आपके नॉमिनीज हैं, सो दे विल रन दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है. सो दैट इज परपेचुअल सक्सेशन. कॉमन सील इज इक्वल टू सिग्नेचर. ठीक है. ये कंपनी का क्या है, आपका सिग्नेचर है, एक मोहर आपका. ठीक है. सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट साइन इट्स नेम, तो यहां पे आपका क्या लगेगा, कॉमन सील आपका लगेगा. ठीक है. देन वी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी बाय द शेयर्स. ठीक है. आज के डेट में जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, तो आप जितना उसका फेस वैल्यू उतने के आपकी लाइबिलिटी है. सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडीज, फ्रॉम द ओनर्स. ठीक है. सो ओनर्स दे अपॉइंट their representative, they generally called board of directors. Then we have transferability of shares. Shares of these particular companies can be transferred from one party to another, right. Separate legal status and given by Companies Act. Large membership in case of private company, minimum 2, maximum 200. In case of public limited company, minimum 7, maximum there is no limit, right. Premium paid up to capital. So this functions or this features now it got removed. So 2015 आपका, ठीक है. So it was introduced in 2013 Companies Act के अंदर, but in 2000 Companies Act 2015 amendments जहां पे आपका इसको हटा देगा. For partnership firm it was 1 lakh, and for public company, so for private company it is 1 lakh, and for public company it was 5 lakh. ठीक है. But now it is totally in the fate of organization, वो कितना भी रख सकता है, इसके ऊपर ऐसे कोई लिमिट्स आपका नहीं है. So these are the features of a company. ठीक है. So I'll share this particular PDF. सेम चीज है, just build your understanding. ठीक है. I'm not saying कि go through these particular definition और इनको याद रखो. अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ है, सो दैट इज मोर देन इनफ. दिस इज जस्ट फॉर ए रिवीजन पर्पस, एंड आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ थ्रू टेलीग्राम चैनल. सो वहां पे आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो क्लियर है ना सबको आपका इतना. ठीक है. सो ये आपका जैसे हमने बात किया था मिनिमम पेड अप कैपिटल का. सो इट वाज आपका 2013 जब इंट्रोड्यूस किया गया था. हाउ द अमेंडमेंट ऑफ 2015 हैज डन अवे विद दिस रिक्वायरमेंट, एंड इट इज एट द कंपनीज discretion to set the paid off capital. So earlier it was 1 lakh for private company and 5 lakh for public limited company. ठीक है. Now next thing is types of companies. ठीक है. आपने बहुत बार आपका सुना होगा types of companies के बारे में. ठीक है. So the major classification is done on the basis of 3 grounds. कौन कौन से आपका ओनरशिप के हिसाब से, आपका इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से, और लाइबिलिटी के हिसाब से. ठीक है. So there are different type of companies. They are generally segregated as per incorporation, ownership and liability. तो अब ये जहां से मैं इसको समराइज करूंगा. ठीक है. So सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर. ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन वी हैव दीज टाइप. फर्स्ट वन इज चार्टर्ड कंपनीज. यू विल नॉट सी एनी चार्टर्ड कंपनी इन इंडिया. ठीक है. हाँ, एक चार्टर्ड कंपनी जिसने इंडिया पर रूल किया था, दैट वाज East India Company, right? So chartered companies are basically the companies which are generally formed on the basis of chartered passed by the king, queen or head of state. ठीक है. तो जैसे जो यूरोपियन यूनियन है वहां पे आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है. तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म ऑन द लाइक बेस्ड ऑन दी चार्टर्ड पास बाय दी और ऑर्डर पास बाय दी देयर किंग और क्वीन. ठीक है. तो वही आपका चार्टर्ड कंपनीज जो इसमें होते थे, एक स्पेशल चार्टर जो राजा रानी के द्वारा पास किए गए उनके बेसिस में. स्टैच्यूटरी कंपनी ये आपको इंडिया में मिलेंगी. द परफेक्ट एग्जाम्पल इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन.
आरबीआई से आपका रेगुलेटरी बॉडीज या आपका डीएफआईज, तो जिनके लिए स्पेशल एक्ट्स आपके पास किए गए, ठीक है। सो स्टैच्यूटरी कंपनी इज जिनके लिए एक स्पेशल एक्ट आपका पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, जैसे आपका LIC एक्ट 1956, GIC एक्ट 1971 और 72, SBI एक्ट 1955, ठीक है। सो दीज ऑल आर चार्टर्ड कंपनीज, कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स आपका जिनको अचीव करने के लिए इनको आपका फॉर्म किया गया होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड कंपनी, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 आपका, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन कंपनी जिनका हेडक्वार्टर और रजिस्ट्रेशन किसी दूसरी कंट्री में हुआ है एंड दे आर रनिंग सम ब्रांचेस इन आवर कंट्री, सो दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। बहुत बेसिक है। दूसरा आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से आपका जो क्लासिफिकेशन है दैट इज, पहला आपका प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मींस लाइक जहां पे मिनिमम 2 मेंबर्स, ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स एंड आपका मैक्सिमम कितने हैं, आपका 200 मेंबर्स, ठीक है, एंड इट इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, एनी कंपनी विच इज अदर देन रजिस्टर्ड फर्म, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी विच इज, पब्लिक मींस विच इज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो आपका लिस्टेड है कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, आपका स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, एंड NSE BSE पे, एंड मिनिमम मेंबरशिप इज 7, ठीक है, एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, ठीक है, सो देयर इज नो लिमिट, इनके कितने भी शेयर होल्डर्स आपके हो सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी वेयर गवर्नमेंट हैव मोर देन 51% ओनरशिप, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ओनरशिप है दैट इज मोर देन 51%। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी इज लाइक जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, दीज आर होल्डिंग कंपनीज, ठीक है, जिनके नीचे बहुत सारी सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स आपके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया आपका रिलायंस का या फिर आपका टाटा का, सो दीज ऑल आर SDFC, दीज ऑल आर होल्डिंग कंपनीज, जिनके नीचे एक ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसे बहुत सारी सब्सिडरी, जैसे रिलायंस के नीचे आपका रिलायंस जियो, आपका रिलायंस कैपिटल, ऐसा आपका जो रहेंगे, तो दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस लीग ओनली, ठीक है, ये आपका यहीं पे आएगा, ठीक है, इसके नीचे सब्सिडरी कंपनी जहां पे होल्डिंग कंपनी के स्टेक आर मोर देन 51%, जैसे रिलायंस के स्टेक है आपका रिलायंस जियो के अंदर कितने, आपका मोर देन आपका 90%, सो दैट इज अ होल्डिंग, दैट इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिलायंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, रिलायंस जियो, ठीक है, या रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर, देयर आर सो मेनी कंपनीज, सो दैट इज सब्सिडरी आपका, ठीक है। एसोसिएट कंपनीज आपको मिलेंगे जहां पे मोर देन 20% एंड लेस देन 50% का स्टेक होगा किसका, होल्डिंग कंपनी का। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी वी हैव 3 टाइप ऑफ कंपनीज। पहला लिमिटेड बाय शेयर्स, जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में आपके होते हैं, जैसे लेट्स से यू ओन 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, तो योर ओनरशिप इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है, या 1000 शेयर्स, इस तरीके से। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जैसे जो स्पॉन्सरशिप वाली कंपनीज होती हैं, तो जहां पे हर एक पार्टनर का आपका इतने इतने पोर्शन के लिए वो आपका लिमिटेड रहता है, अगर कल के डेट में लिक्विडेशन होगा सो दे विल बी लायबल फॉर दैट मच ऑफ अमाउंट, ठीक है। एंड कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, ठीक है, कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो जहां पे जो उसके ओनर्स हैं या जो उसके प्रोपराइटर्स या पार्टनर्स हैं, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर लाइबिलिटी, फॉर जैसे अगर कभी लिक्विडेशन होता है तो उनकी जो पर्सनल एसेट्स है उनको भी सीज किया जा सकता है इन दैट पर्टिकुलर केस आपका। तो ये आपका एक फॉर्म जहां पे टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। इनका अगेन डेफिनेशन मैंने आपके लिए रखा है सेम वे में आपका, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इनको समझने में या इनके फीचर्स को आपका जानने में, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज जिनको 1 by 1 हम लोगों ने आपका डिस्कस किया, एंड आई शेयर दिस PDF, तो PDF से आप थोड़ा एक बार इनको गो थ्रू कर सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सके, ठीक है। अब जो अगली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज टाइप ऑफ शेयर्स। सो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 44 देयर आर 2 टाइप ऑफ शेयर्स, वन इज equity shares, another one is preference shares. What is shares? I hope everybody is aware about this. Shares are generally part of ownership, ठीक है। तो किसी भी कंपनी के अंदर आपका जो ओनरशिप का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड शेयर्स, ठीक है। लेट्स से देयर इज XYZ कंपनी, they raise funds through equity markets, तो they are going public, ठीक है, वो आपका पब्लिक हो रहे, so that means they are selling some part of their ownership to the public in the form of shares, ठीक है। तो शेयर्स आपका 2 टाइप के, पहला आपका इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स दे हैव वोटिंग राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को
आपका जैसे दो टाइप कंपनीज एक्ट में दिए गए, पहला इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट, दूसरा इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट एज वेल एज डिफरेंशिएटेड राइट, ठीक है। सो दैट इज फॉर इक्विटी शेयर्स, दीज आर कॉमन शेयर्स, ओके। तो जैसे अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो यू हैव टू ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स किसी भी ब्रोकर के साथ एंड यू कैन परचेज द शेयर्स ऑफ दीज मल्टीपल कंपनीज, ठीक है। रिलायंस हो, टाटा हो, टीसीएस हो या अदर कोई भी कंपनी आपका, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर्स, दीज शेयर्स बिलोंग्स टू क्लोज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। जो उस कंपनी के क्लोज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ये रहते हैं, ठीक है। एंड दे गेट प्रीफर्ड ओवर इक्विटी शेयर्स, देयर प्रेफरेंसेस इज ऑलवेज ओवर इक्विटी शेयर्स। क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं? पहला आपका राइट टू डिविडेंड, ठीक है। जब कंपनी डिविडेंड्स आपका देगी तो पहले इनको प्रेफरेंस देगी। दूसरा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, दैट मींस कल के डेट में अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो सबसे पहले मतलब इन दोनों में से पहले पैसा किसको मिलेगा? आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपका दिया जाएगा। नाउ दीज प्रेफरेंस शेयर्स दे हैव सो मेनी इफ एंड बट कंडीशंस, लाइक प्रेफरेंस शेयर्स convertible and non-convertible, we have redeemable and irredeemable, ठीक है। then we have आपका cumulative and non-cumulative, participative and non-participative, so we'll come to this one, ठीक है। so as preference shares आपका, so two major preferences, one is at the time of dividend and another one is at the time of liquidation, or when we are winding up that particular company, so we'll give first preference to preference shareholders out over equity shareholders, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, इनकी जो प्रेफरेंसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर आपका रहता है, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स दे हैव वोटिंग राइट, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड अदर्स दे आर जनरली कॉल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इज इवन फर्दर कैटेगराइज्ड बिटवीन टू पार्ट, voting right with differential right as dividend voting and some other right also, right? Preference shares which are further categorized among 8 parts, 8 parts में ये हो सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला आपका क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, आपको सिर्फ एक साइड समझना, उसका अपोजिट आपका दूसरा साइड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से देयर इज अ कंपनी XYZ कंपनी, ठीक है, जिसने आपका प्रेफरेंस शेयर्स आपके इशू किए, ठीक है। सो नाउ अगर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स आपके इशू किए गए हैं, ठीक है, if it is mentioned cumulative, that means if they like let's say they have announced dividend, they do not have announced dividends in 2020, अब 2020 में इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, 2021 में इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, 2022 में भी इन्होंने, 2022 वाज अ लॉस पीरियड सपोज दैट, जिसके लिए डिविडेंड होगा ही नहीं, ये प्रॉफिट पीरियड था बट डिविडेंड नहीं दिया। 2024 आपका जब वो डिविडेंड्स अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे वो डिविडेंड्स दे रहे हैं, तो इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हाउ विल कैलकुलेट? इन 2 सालों का जो डिविडेंड है प्लस इस साल का जो डिविडेंड है, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव वालों को सिर्फ और सिर्फ 2024 का जो अमाउंट पे डिविडेंड है वो आपका, उसके लिए वो कहीं ना कहीं एलिजिबल होंगे आपका। तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। दूसरा रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ठीक है, तो रिडीमेबल को समझते हैं, इरिडीमेबल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से दिस XYZ कंपनी दे हैव इशूड शेयर्स, अब इनके पास एक राइट है, जब ये प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए तो उन्होंने एक राइट डाल दिया कि आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years कंपनी हैज राइट कि दे कैन बाय बैक दीज पर्टिकुलर शेयर्स फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो अब XYZ ने अगर रिडीमेबल शेयर्स इशू करें तो दिस राइट बिलोंग्स टू राइट टू कंपनी, राइट, कंपनी के पास राइट क्या है आपका? टू बाय बैक दीज पर्टिकुलर शेयर्स, दे कैन बाय बैक दीज पर्टिकुलर शेयर्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, ठीक है। XYZ कंपनी आपका दे हैव दिस राइट टू बाय बैक दीज पर्टिकुलर शेयर्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है। और इरिडीमेबल है तो आपका यहाँ पे बायबैक का राइट उनके पास नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट वन वी हैव पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है? जैसे सपोज दैट कंपनी ने आपका डिविडेंड बोला कि जो भी हम लोगों का प्रॉफिट होगा, डिविडेंड कैसे डिसाइड किया उन्होंने, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 8% हम लोग जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में बांटेंगे। जैसे सपोज दैट 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 8 लाख रुपीज वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऐसा डील हुआ स्टार्टिंग में। अब उन्होंने यहाँ पे एक राइडर ऐड कर दिया, जैसे इंश्योरेंस में राइडर होता है ना, इतना अमाउंट एक्स्ट्रा दो तो ये बेनिफिट मिलेंगे, सेम एज यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि इफ यू पे दिस मच अमाउंट एक्स्ट्रा, और अगर हमारा प्रॉफिट, इफ आवर प्रॉफिट इज मोर देन 5 करोड़ और 10 करोड़, कोई भी ऐसा अमाउंट आपका, ठीक है,
वी विल पे यू एडिशनल 2% ऑफ डिविडेंड। ठीक है, 2% मतलब आपका, अगर आप इस कंडीशन में जाते हैं, एक तो ये तो नॉर्मल है आपका, ठीक है, इसके अलावा एक एडिशनल आपको पिच किया गया कि अगर आप पर प्रीफरेंस शेयर्स 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो हम आप अगर, और हमारा प्रॉफिट जब भी आपका 5 करोड़ से ज्यादा होगा, हम आपको 2% का एडिशनल आपका डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो दो तरीके के इन्वेस्टर हैं, एक आपका जो इन दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक आपका जो सिर्फ और सिर्फ आपका 8% वाले में जा रहा है। सो पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, फाइनल हमारे पास है आपका कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। इन दिस केस कन्वर्टेबल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो यहां पे राइट किसके पास होता है आपका, राइट टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो भी आपके प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको यहां पे राइट दिया जा रहा है। राइट क्या है आपका, राइट टू सेल बैक। ठीक है, राइट टू सेल बैक, वो क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रीफरेंस शेयर्स को आपका क्या कर सकते हैं, सेल बैक कर सकते हैं। ठीक है, सेल बैक टू कंपनी, मतलब, और वी कैन से दे कैन कन्वर्ट, ऐसे उनको आपका दे कैन कन्वर्ट दीज प्रीफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी, और इक्विटी को वो आपका बेच के वहां से आपका एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, सो कन्वर्टेबल which can be after some time which can be convertible into equity shares। ठीक है, सो और नॉन कन्वर्टेबल विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो यहां पे राइट किसके पास है, आपका इन्वेस्टर्स के पास है, कि अगर उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, या इफ दे आर गेटिंग सम बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, सो दे कैन एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये आपका 8 टाइप्स, इनका भी मैंने प्रॉपर डेफिनेशन आपके लिए बना करके रखे हैं। ठीक है, सो वंस गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन। अगर कोई भी आपको किसी भी उसमें दिक्कत आती है, डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन। सो अगर छोटा सा डाउट होगा, आई विल सॉल्व थ्रू दी कमेंट्स ओनली। अगर थोड़ा बड़ा डाउट होगा, आई विल कम अप विद अ शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा जहां से आपको हेल्प मिलेगी। अब अगला पार्ट हमारे पास है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, सो आई होप सो मेनी टाइम यू गाइज हर्ड अबाउट दी आपका ऑथराइज कैपिटल, देन वी हैव इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। यहां से एक क्वेश्चन हर साल आपका मिलता है, वो जनरली आपका जो जनरल एंट्रीज होती है। ठीक है, जैसे आपका मनी रिसीव्ड एट सेकंड कॉल, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो आपका आंसर होगा बैंक अकाउंट विल डेबिटेड। तो ऐसे आपके जो अलग अलग पोर्शन, सो आई विल कम अप विद सम सेट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, जब हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पाएंगे तो वहां पे आपको हेल्प करेंगे। बट अभी आपको इन कैपिटल्स का थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ आपका इस तरीके से, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट वी हैव आपका normalized capital which is also known as authorized capital or registered capital. Second we have issued capital, third we have subscribed capital, fourth we have paid up capital, and final we have called up capital. अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करें, so this is capital which is stated on MOA documents। तो जो कंपनीज का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उस रजिस्ट्रेशन के दौरान आप अपनी ऑथराइज कैपिटल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और आपका ये कैपिटल डिसाइड करेगा आगे की जर्नी। सपोज दैट फॉर XYZ कंपनी सो इट इज 10 करोड़, इनका जो ऑथराइज कैपिटल है या रजिस्टर्ड कैपिटल है दैट इज 10 करोड़। ठीक है, सो अब इनका ये 10 करोड़ है, सो इट कैन नॉट, देयर इशूड कैपिटल कैन नॉट ग्रेटर देन 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, आपका मतलब इशूड कैपिटल कैन नॉट ग्रेटर देन दी ऑथराइज कैपिटल, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सो इशूड कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू के हिसाब से। जैसे सपोज दैट दे हैव इशूड शेयर्स ऑफ रुपीज 5 करोड़ एट द फेस वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 10। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे इनके। ठीक है, सो 5 करोड़ डिवाइड बाय 10 आपका। ठीक है, सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉर दिस कंपनी, जो उन्होंने पब्लिक को इशू किए हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब ये इन्होंने 5 करोड़ के रुपए के शेयर्स आपका ये लेके आए हैं इशूड कैपिटल। देन आपका सब्सक्राइब कैपिटल इज विच इज सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और FPO, जो भी आपका फेज में ही है। ठीक है, so subscribe which is actually subscribed by the public, most of time you'll see over subscription। ठीक है, means आपका आप देखो सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी आपका लेस देन इक्वल टू योर इशूड कैपिटल। ठीक है, तो इसके लिए इसका कंपैरिजन मतलब 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, देन पेड अप कैपिटल, लेट्स से हमें 100% आपका सब्सक्रिप्शन मिला, आउट ऑफ 100% जैसे अलग अलग आपका फेजेस होता है। ठीक है,
हम लोग जो मनी आपका रिसीव कर रहे होते कंपनीज, इट गोज इनटू 5 to 6 स्टेजेस। जैसे पहला आपका एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, सपोज दैट आपका उन्होंने जो शेयर वैल्यू रखा था 100 रुपए रखा था, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सपोज दैट दे आर चार्जिंग 40 रुपीज। देन आपका एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपका 20 रुपीज हम उनसे फिर ले रहे हैं, 60 रुपीज। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल सो इट इज सपोज दैट 10 रुपीज, ठीक है। अब फिर 30 रुपीज बचा। एट द टाइम ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल आपका 30 रुपीज। इस तरीके से आपका जर्नी होता है। तो जो पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया और विच इज ऑलरेडी पेड बाय द इन्वेस्टर, ठीक है, जो इन्वेस्टर ने पे कर दिया कंपनी को आउट ऑफ दैट 100 रुपी, सो दैट इज पेड अप। जो रिमेनिंग है दैट इज आपका कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूं जिससे और बेटर क्लियरिटी आपको मिल जाए। तो हमारे पास क्या है, पहला ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, विच इज known as authorized capital, which is known as your registered capital, which is part of MOA document, ठीक है, memorandum of association, जहां पे ये कैपिटल, सपोज दैट इन केस ऑफ कंपनी इट इज आपका 10 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज का ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है। नाउ देन वी हैव इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी आपका, इट कैन बी लेस देन इक्वल टू योर ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। मतलब ऑथराइज कैपिटल से आपका, ठीक है, इशूड कैपिटल कैन नॉट बी ग्रेटर देन, लाइक वी कैन से इट, इशूड कैपिटल कैन नॉट बी, और इशूड कैपिटल कैन बी लेस देन इक्वल टू योर ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। सो सपोज दैट दे हैव कम अप विद 10 करोड़ रुपीज आईपीओ, पूरा 10 करोड़ का ही ये यूज कर रहे हैं यहीं पे, ठीक है। अगर उनको कल के डेट में दोबारा शेयर करना होगा, फर्स्ट दे हैव टू इंक्रीज देयर ऑथराइज कैपिटल, देन आपका फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो अब तीसरा आपका subscribe capital, which is subscribed by the public, ठीक है। It cannot be, subscribe capital cannot be greater than equal to your issued capital, ठीक है। So suppose that we got 100% subscription 10 करोड़ रुपीस का। आउट ऑफ दिस इन्वेस्टर जिस स्टेज पे हम लोग हैं, एप्लीकेशन स्टेज पे, सपोज दैट, और अलॉटमेंट स्टेज पे, वी रिसीव पेड अप कैपिटल इज, वी रिसीव 60% पेमेंट और 70% पेमेंट, सो 7 करोड़ इज योर पेड अप। अब ये जो फाइनल स्टेज है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। सो कॉल्ड अप कैपिटल इज बेसिकली दैट रिमेनिंग 3 करोड़ रुपीज which shareholders own to owe to your company। मतलब ये पैसा आपका शेयर होल्डर्स ओ करते हैं किसको, कंपनी को, ठीक है। एंड दे हैव टू मेक द पेमेंट। अगर जैसे आप सवाल ये आता है कि अगर कल के डेट में वो जैसे 3 करोड़ में से 2.5 करोड़ ने पेमेंट कर दिया, जो 5 लाख है आपका 0.50 करोड़ है, उनके द्वारा 50 लाख उनके द्वारा पेमेंट नहीं किया गया, तो फोरफिटेड शेयर के थ्रू हम उनको आपका रिवर्स एंट्री के साथ हटा देंगे। तो दीज आर दी 5 टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। आई होप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आपका थ्योरेटिकली आप लोग गो थ्रू कीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी आप लोगों के लिए रखे हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको मिल सके। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ प्रोसेस की। जब कोई कंपनी पब्लिक होती है तो उस समय आपका एक प्रोसेस उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। सो दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स आपका, ठीक है। लेट्स से दिस XYZ कंपनी, ठीक है, जो हमारी XYZ कंपनी है, ठीक है। सो दे आर गोइंग पब्लिक, ठीक है, सॉरी। सो लेट्स से दिस XYZ कंपनी, दे आर बीइंग पब्लिक, ठीक है। अब ये कंपनी आपका क्या हो रही है, पब्लिक हो रही है, ठीक है। XYZ लिमिटेड जो हम लोगों का था, ठीक है, XYZ लिमिटेड आपका ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है, ठीक है। सो लिस्ट होगा आपका प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। सो इट विल गेट लिस्टेड इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है। सो प्राइमरी मार्केट के अंदर आपका ये लिस्ट होगा, ठीक है। सो प्राइमरी मार्केट के अंदर आपका ये लिस्ट होगा, ठीक है। तो जहां पे आपका जैसे अगर हम लोग बात करें प्राइमरी मार्केट के अंदर, तो हमारे पास प्रोसेस होता है आपका आईपीओ। फर्स्ट टाइम अगर कोई लिस्ट हो रही है, अगर ये सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम इश्यू करें, तो आपका लाइक आफ्टर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, जहां पे जो बेसिक गाइडलाइंस है वो फुलफिल होने के बाद आपका आईपीओ मतलब जब उसको अप्रूवल मिल गया, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट अप्रूव हो गया, ठीक है, देन इट विल कम टू द आईपीओ, ठीक है। आईपीओ का जो पार्ट है ना, इट इज डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट, अमंग 3 पार्ट, ठीक है। कौन कौन सा, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जो एक एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट, देन आपका एप्लीकेशन बाय द इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, देन फाइनल वन इज अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये आपका जो जर्नी जिसको आप लोग आगे समझने वाले हैं, ठीक है। सो इश्यू ऑफ शेयर्स, द इश्यू ऑफ शेयर्स, द प्रोसीजर इन विच एंटरप्राइज लोकेट न्यू शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। तो आपका जैसे रूल्स आपको जो कंपनीज एक्ट के हैं वो फॉलो करने होंगे आफ्टर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। तो पहला
आपका प्रोस्पेक्टस, दूसरा रिसीविंग एप्लीकेशन एंड तीसरा आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसके ऊपर ना मैंने एक सेपरेट वीडियो भी किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा आईपीओ प्रोसेस के ऊपर, तो वहां पे मैंने सेम कंटेंट यूज किया है। ठीक है, जैसे प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें बेसिकली हम लोग क्या शो कर रहे होते हैं, पूरा एक एडवर्टीजमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर योर आईपीओ प्रोसेस। ठीक है, तो जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन, तो ये आपका आएगा। ठीक है, देन वी हैव आपका रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम लोग आपका एप्लीकेशन रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तीसरा आपका एलोकेशन ऑफ शेयर्स। एलोकेशन ऑफ शेयर्स जो आपका होता है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोरेटा ग्राउंड। ठीक है, जनरली कंपनीज के जो आपके शेयर्स हैं वो आपका या एट द टाइम ऑफ आईपीओ वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो वहां पे आपका ये अलॉटमेंट जो रहेगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एज ए रेफरेंस भी आपका देख सकते हैं। तो गाइस ये आपका कंपनी अकाउंट 1 जिसका समरी, तो थोड़ा सा लेंदी वीडियो है बिकॉज यहाँ पे कंटेंट बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे ना अराउंड 60-70 पेजेस के अंदर आपको ये जो यूनिट है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जब हम लोग आपका फाउंडेशन में आएंगे तो डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे, बट अगर अभी भी आपका कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरीज भी आपका कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपका सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी और सब्जेक्ट के क्लासेस भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, जिससे हम अपनी रीच को आपका और ज्यादा इंक्रीज कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू, अगर पसंद आए तो साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे आपको और कंपनी अकाउंट 2 की समरी के साथ, जो कि हम लोग कल शाम 7 बजे आपका करने वाले। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।